Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 4, and in chapter number 4 in previous class we discussed about the phylum Aschelminths. Today we will discuss about the next phylum, that is Annelida. So Annelida word is derived from the name annulus. Annulus means little ring. It means little ring. Why this word is taken in the name of Annelida? See, when you draw the diagram of earthworm, then you see, तुमने अर्थवर्म देखा भी होगा कि अर्थवर्म का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह की छोटी छोटी रिंग्स होते हैं, उसके अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं. इन्हीं रिंग्स की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? एनेलिडा रखा गया है. एंड दीज सेगमेंटेशंस, दिस इज नोन एज ट्रू सेगमेंटेशन. इट इज नोन एज ट्रू सेगमेंटेशन. मीन्स जो अर्थवर्म है इसके अंदर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, नॉट ओनली अर्थवर्म, सभी एनेलिडा के अंदर सभी organisms which belong to Annelida all have segmentation, external segmentation as well as internal segmentation, and this is known as true segmentation. Clear? And these individual segment, एक individual को हम या तो segments बोलते हैं या फिर मेटामियर बोलते हैं. इधर भी से segment और भी से मेटामियर. True segmentation or segmentation word is also known as metamerism. Metamerism. This word is VIP, means it is very important. बहुत important है for NEET purpose. Why? Because metamerism is shown by only 3 phylum of animal kingdom, that is Annelida, Arthropoda and Chordata. All these 3 phylum show true segmentation or metamerism. That's why this is very important question for NEET exam. Next thing, if we talk about habitat, they can be aquatic. In aquatic, they can be in fresh water or can be marine. Clear? They can be terrestrial. They can be free living. And sometimes they are parasite also, like leech. Leech is a parasite. Okay. If we talk about coelom, they are coelomate animals. Coelomate means they have coelom. coelom क्या होती है? बार बार ये चीजें आती हैं. सपोज ये अर्थवर्म है, दिस इज माउथ और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और ये बॉडी वॉल है, इसके बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है? सीलोम बोला जाता है. और इस एलिमेंट्री कैनाल पर अगर इस तरह की मेसोडर्म की लाइनिंग बनी हुई है, एंड हियर बॉडी वॉल पे ऑल्सो, इफ सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ, बॉडी वॉल के अंदर की तरफ मेसोडर्म अगर प्रेजेंट है, दिस इज मेसोडर्म, ब्लैक कलर की जो बनाई है मैंने. If coelom is lined by mesoderm, then that coelom is known as true coelom. So they are coelomate and they have schizocoelom. We discussed about the type of coelom. हमने coelom की टाइप पढ़ी थी, schizocoelom and enterocoelom in basic of classification. If you have not attended that class, then I'll drop the link in description box. You can direct go to the class of basis of classification. There you can learn about the coelom, ki what is coelom, how many its types and what are they. Clear? So these animals are true coelomate. They have schizocoelom. Next is symmetry. They have bilateral symmetry. Bilateral symmetry. So इन organisms के अंदर एक नया फीचर आया है क्या? They have coelom. इससे पहले पोरिफेरा असिलोमेट थे, नाइडेरिया टिनोफेरा भी असिलोमेट थे. उसके बाद हमने प्लेटीहेल्मिन्स देखे, वो भी असिलोमेट थे. देन अस्केहेल्मिन्स वर स्यूडोसिलोमेट एंड नाउ दे एनेलिडा आर सिलोमेट. इफ यू टॉक अबाउट जर्म लेयर्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे हैव 3 germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Level of organization, they have organ system level of organization. इनके अंदर organ system level of organization, इनके अंदर organ system बना हुआ है. If we talk about body plan, they have tube within tube body plan. Tube within tube
body plan. Means complete alimentary canal is present, both mouth and anus are present. Suppose this is mouth and here ये मान लो organism finish है, यहाँ पर इसका anus है. So this is known as tube within tube body plan when alimentary canal is complete, having both mouth and anus, both openings are present. Is it clear? You can take screenshot. Basics हमने कर लिए हैं, कुछ और बेसिक्स के बारे में अभी बात करेंगे. नाउ अब कुछ और बेसिक्स की बात करते हैं एनेलिडा फाइलम में कि और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, respiration is cutaneous in case of annelida. They respire with the help of their what? Body surface. If we talk about circulation, they have closed circulatory system. अभी तक किसी के पास भी circulatory system नहीं आया था, but in annelida circulatory system is present और वहाँ पर भी उसने छक्का मारा. Open नहीं, closed circulatory system is present. Now what is open and closed circulatory system? In open circulatory system, blood does not flow in blood vessel, it flow directly. But in case of closed circulatory system, blood flows in blood vessels. वो खुला नहीं flow करता, blood vessels में flow करता है. वो होता है closed circulatory system. So I can write here, blood flows in blood vessels. Clear? Also their blood is red. Their blood is red. Why blood is red? It is due to presence of the pigment phyco, present of the pigment phycoerythrin. Phycoerythrin. Like hemoglobin is present in us and blood is red due to presence of hemoglobin. They have the pigment phycoerythrin. It is responsible for redness of blood, and this pigment is not present in blood cell like hemoglobin is present in RBC. It is not present in blood cell, but it is dissolved in plasma. ये प्लाज्मा के अंदर dissolve होता है. It is dissolved in plasma, not present on blood cells. Blood cells are either absent or they are phagocytes. Blood cells are mostly phagocytes. Clear? And do you know earthworm has 4 hearts? Earthworm has 4 hearts. इसके 4 heart होते हैं. Remember this point also. Clear? Next thing, if you talk about excretion, they have special organ for excretion. They have nephridia. Nephridia for excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. Nephridia is excretory structure in case of annelida. Clear? I hope ये basics clear हैं. You can take screenshot. उसके बाद हम reproduction की बात करते हैं. Done? Okay. Now we'll talk about reproduction. How reproduction takes place. See, reproduction. In case of earthworm, if we talk about particularly earthworm is monoecious. It is monoecious, also you can say hermaphrodite, means both sex are present in single individual. So how they do, इसका मतलब वो both sex present है तो वो आपस में fertilization कर लेते हैं. ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार बताती रहती हूँ कि nature does not support self fertilization, कि उसी के अंदर टेस्टिस, उसी के अंदर ओवरी है, वो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे. स्पर्म और ओवम किसी दूसरे इंडिविजुअल से करेंगे फर्टिलाइजेशन, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. सो 2 अर्थवॉर्म जॉइंट टेल टू टेल. वो टेल टू टेल, ये इनकी टेल है, इधर इसका हेड है और यहाँ पर इसका हेड है. दे जॉइंट विद टेल टू टेल एंड स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इन देयर बॉडी.
sperms are injected or they are exchanged. Clear? And here a structure is present. This is known as cocoon. Fertilization takes place inside cocoon. Fertilization takes place inside cocoon. So we can say earthworm has external fertilization. It has external fertilization and cross fertilization. एक्सटर्नल भी हो रहा है इसके अंदर, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है. एक ही इंडिविजुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, 2 इंडिविजुअल्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है. नो लार्वल स्टेजेस, कोई लार्वा नहीं है यहाँ पर. नो लार्वल स्टेजेस, सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हियर. डायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लीच, leech is also monoecious. Leech is also monoecious, and one thing is there here, internal fertilization is there. In case of leech internal fertilization होता है, but if we talk about earthworm it has external fertilization. You have to remember these points. Question is asked to confuse the students कि इसमें एक्सटर्नल होता है, किसमें इंटरनल होता है. अभी तो एक मेंबर और बचा है इसका, निरिस, उसमें भी बताऊंगी कैसा होता है, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. पढ़ना तो हमें अर्थवॉर्म भी था बट इस चैप्टर में नहीं. वन मोर चैप्टर इज देयर इन योर क्लास, वहाँ पर अर्थवॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो हमने नर्वस सिस्टम की भी बात नहीं किया है. नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल थिंग्स विल बी देयर इन डिटेल इन दैट चैप्टर. अभी हमें बस यही इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक करनी है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन विल डू अबाउट निरिस. डन. सो अभी मैं तुम्हें एनेलिडा की 3 क्लासेस के बारे में बताती हूँ. हाउएवर इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट वी आर टू डू टू मेक द थिंग्स इजी. फर्स्ट क्लास, 3 क्लासेस आर देयर ऑफ फाइलम एनेलिडा. फर्स्ट इज पोलीकीटा, सेकेंड ओलिगोकीटा, थर्ड वन इज हिरुडीनिया. हिरुडीनिया. पोलीकीटा में एग्जाम्पल आएगा निरिस का, ओलिगोकीटा में एग्जाम्पल आएगा अर्थवॉर्म, हिरुडीनिया में एग्जाम्पल आएगा हिरुडीनेरिया मीन्स लीच. हिरुडीनेरिया मीन्स लीच. दिस फाइलम इंक्लूड the organism which are dioecious. Here monoecious. In Hirudinaria also monoecious. ठीक है. पोलीकीटा आर मरीन ऑर्गेनिजम्स, ये मरीन एनिमल्स हैं. निरिस सी में रहता है. ओलिगोकीटा आर फ्रेश, नॉट फ्रेश वाटर, दे आर टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे रहता है. एंड हिरुडीनेरिया, दीज आर फ्रेश वाटर एनिमल्स, ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं. अब ये नाम क्यों दिया गया कीटा? कीटा ये क्या है? अभी मैं इनके बारे में तुम्हें बताऊंगी कि ये क्या है. सी, कीटा मीन्स सीटा. नाउ व्हाट कीटा, सीटा, व्हाट इज दिस मैम? सीटे, दीज आर एस शेप्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर. एस शेप्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर. एस शेप के काइटिन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं. एंड फॉर व्हाट पर्पस? दीज आर फॉर लोकोमोशन. ये मूवमेंट के लिए इनकी नीड होती है. ये मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं कि हाउ अर्थवॉर्म मूव, हाउ निरिस मूव, हाउ. लीच में तो नहीं होते, खैर लीच में नहीं होते हैं. ठीक है, हम भी इनकी बात करते हैं. सी, सपोज दिस इज अर्थवॉर्म, लाइक दिस, इट इज अर्थवॉर्म. सो दे हैव एस शेप्ड स्ट्रक्चर. इनके पास इस तरह से एस शेप के स्ट्रक्चर होते हैं. दीज एस शेप स्ट्रक्चर आर नोन एज सीटे इन केस ऑफ अर्थवॉर्म. इफ यू टॉक अबाउट निरिस, अगर हम निरिस की बात करें, निरिस हैव बोथ थिंग्स, मीन्स दे हैव पैरापोडिया. इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं लोकोमोशन के लिए.
जिनको क्या बोला जाता है, पैरापोडिया। दीज आर नोन एज पैरापोडिया। ये कौन बनाया मैंने, निरिस। अभी आगे भी है, मैंने पूरा नहीं बनाया है। इस तरह से इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, बनाऊंगी मैं ये, अभी निरिस को हम डिटेल में करेंगे। पैरापोडिया के पास, पैरापोडिया के ऊपर ऐसे एस शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर सीटा। इनको क्या बोलते हैं, सीटे। दीज एस शेप स्ट्रक्चर आर नोन एज सीटे। मीन्स निरिस हैव बोथ थिंग्स, सीटे भी है इसके पास, पैरापोडिया भी है, दोनों ही लोकोमोशन के काम आते हैं। पैरापोडिया हेल्प करता है क्रॉलिंग में, क्रॉल ऑन सैंड, सॉरी, पैरापोडिया हेल्प करता है स्विमिंग में, क्योंकि निरिस कहाँ रहता है, मरीन ऑर्गेनिज्म है ना, सी में रहता है, स्विमिंग भी करनी पड़ती है इसको, बट ये सैंड पे भी रहता है, मरीन तो है ही, जो सैंड बॉटम ऑफ सी के में जो सैंड है वहां पर भी क्रॉल करता है, तो सीटे हेल्प इन क्रॉलिंग ऑन सैंड। बोथ आर लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट लीच, लीच डोंट हैव पैरापोडिया, they don't have setae but it have sucker, sucker help in movement। अभी हम करते हैं लोकोमोशन स्ट्रक्चर की बात। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आई होप setae तुम्हें समझ आ गया है। सी, अब हम लोकोमोटर स्ट्रक्चर की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीच में क्या है मूवमेंट के लिए, अर्थवॉर्म में क्या है मूवमेंट के लिए। सी, एक है लोकोमोटर स्ट्रक्चर पैरापोडिया, पहले सीटे लिखते हैं, वो सीटे। सेकंड है पैरापोडिया। थर्ड इज बॉडी मसल्स, मसल्स ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट लाइक इन अस, एंड लास्ट वन इज सक्कर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, निरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। देखो, सीटे इज प्रेजेंट बोथ इन निरिस एंड अर्थवॉर्म बट नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ लीच। ये लोकोमोटर स्ट्रक्चर है सभी। पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन निरिस, नॉट प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म एंड लीच। बॉडी मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री एनिमल्स विच हेल्प इन मूवमेंट। Sucker is present only in leech. So you can see that earthworm move with the help of setae and body muscles. earthworm किसकी हेल्प से मूव करता है, setae की हेल्प से और बॉडी मसल। तुमने मूवमेंट देखी होगी ना earthworm की, इस तरह से चलता है ना वो अपनी मसल्स की हेल्प से। देखो जैसे ये earthworm है, like this, ठीक है। इस earthworm में एक तो सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स आर आउटर, एंड एक होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इस तरह से लंबाई में मसल्स होती हैं लॉन्ग। दीज मसल्स आर इनर मसल्स, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है अर्थवॉर्म की। इसका ठीक अपोजिट ह्यूमन की बॉडी में होता है। ह्यूमन में सर्कुलर मसल्स इनसाइड होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल आउटसाइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्लियर। तो अर्थवॉर्म मूव विद द हेल्प ऑफ बॉडी मसल्स एंड सीटे। निरिस मूव विद द हेल्प ऑफ सीटे एंड पैरापोडिया। पैरापोडिया बॉडी मसल्स ऑल्सो। पैरापोडिया हेल्प करता है स्विमिंग में, सीटे और बॉडी मसल्स हेल्प करते हैं क्रॉलिंग व्हेन इट क्रॉल इन द सैंड। बट बेचारी लीच के पास ना ही सीटे हैं ना ही पैरापोडिया है। इट हैव मसल्स एंड सक्कर। इट हैव टू सक्कर, वन ऑन ईच एंड, दोनों एंड पे एक सक्कर होता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। आई होप इट इज क्लियर। लोकोमोटर स्ट्रक्चर का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन विल डू नेक्स्ट थिंग। डन। अब हम निरिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि निरिस कैसे रहता है, क्या उसकी लाइफ साइकिल है। Niris, where it live, it is marine organism. It is marine means ये सी में रहता है। ये सी में वाटर में भी रह सकता है और बॉटम ऑफ सी में भी रहता है। It live in bottom of sea means sand में। It have two pair of eyes, two pair of eyes है इसके पास, and palps,
What are palps? These are sensory structures. These are sensory structure. If I draw diagram of Nereis, so it will be like this. This is Nereis, like this. क्लियर? इस तरह से मीन्स पूरा इस तरह से ऐसे Nereis प्रेजेंट है. इसमें इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे पैरापोडिया प्रेजेंट है. These are पैरापोडिया. And here some sensory structures are present which are known as palps. Clear? So पैरापोडिया के ऊपर ऐसे shaped structures होते हैं which are known as what? Setae. So this S shaped structure are setae and these are known as पैरापोडिया. दोनों का फंक्शन समझ आ गया होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एंड नीट. फंक्शन पता होना चाहिए तुम्हें. सी सो व्हाट इट डू? इट मेक बुरो. इट मेक बुरो इन सैंड. इट लिव्स इन इंटरटाइडल रीजन. कहाँ रहता है? इंटरटाइडल रीजन्स में रहता है. सी सपोज ये वाटर है और वाटर में ये इस तरह से अपनी बुरो बना लेता है. ठीक है, इस बुरो में वो रहता है. ये Nereis है हमारा. ठीक है, बुरो में रहता है. यहाँ से वाटर आता है तो वाटर ये क्या करता है? अपने बुरो में मूवमेंट करता रहता है ताकि इसके पास पानी पहुँच जाए. और पानी किस लिए जरूरी है? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है. इट डू रेस्पिरेशन. और जैसे जैसे वाटर इसकी बुरो तक आएगा उसमें कुछ छोटे मोटे कीट कीटाणु भी आ जाएंगे जिसको ये खा लेगा. Actually, Nereis is carnivorous. It is carnivorous. समझ आ गया? Clear? हाँ, you can take screenshot. इसके बाद हम इसके reproduction की बात करते हैं. Done? So, if we talk about reproduction, it is very interesting. Nereis का reproduction देखते हैं कैसे होता है. Nereis reproduction, how it do. First thing तो ये कि जो Nereis है it is what? Dioecious animal. Dioecious means मेल अलग और फीमेल अलग. और जब भी इसका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है ना, इसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये अपनी बॉडी चेंज कर लेता है. चेंज का मतलब पहले जैसी बॉडी होती थी उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. सी सपोज दिस इज Nereis. ये एक Nereis है. ठीक है, इस तरह से इसमें सेगमेंट्स है. अपर बॉडी तो रिमेन सेम. अपर बॉडी रिमेन सेम. ऊपर वाली तो सेम रहती है. नीचे वाली बॉडी में टेम्परेरी गोनेड्स बन जाते हैं. टेम्परेरी गोनेड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी फॉर्म. गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी. अब देखो कैसे बन जाते हैं. लाइक दिस. ये Nereis है हमारा. ठीक है, इस तरह से. यहाँ पर इसका माउथ है. ठीक है, माउथ से फिर यहाँ तक इसकी एलिमेंट्री कैनाल चलती है. लास्ट में इसका एनस बन जाता है. ठीक है, और ये क्या है? इट इज सीलोम. Testis and ovary are formed. Testis start making sperm and sperm are released inside coelom. Coelom के अंदर sperm release हो जाते हैं. Sperms released in coelom. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें. कैसा फर्टिलाइजेशन है? एक्सटर्नल. स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, ओवम से फ्यूजन करते हैं, फिर एक दूसरे के मेल और फीमेल जो होते हैं एक दूसरे के राउंड लगाते रहते हैं, है ना. स्पर्म रिलीज कर देते हैं. स्पर्म और ओवम फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. कुछ स्पीशीज में क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम है वो नेफ्रिडिया के थ्रू आउट जो है रिलीज होते हैं. दे आर रिलीज आउट बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया. और एक स्पीशीज तो ऐसी भी है, नीट में नहीं पूछा जाएगा बट मैं बता देती हूँ. एक स्पीशीज तो ऐसी भी है कि उस केस में ओवम जो होता है ना वो 30 सेकंड तक ही सर्वाइव करता है. इट सर्वाइव फॉर 30 सेकंड. तो व्हाट द Nereis डू, मेल Nereis रिलीज इट्स स्पर्म थ्रू एनस इनटू द माउथ ऑफ फीमेल Nereis. फीमेल Nereis के माउथ पे अपना एनस
ज्वाइन कर देता है और वहाँ पर वो रिलीज़ कर देता है स्पर्म, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है एग सिर्फ 30 सेकेंड तक ही कुछ मिनट तक ही मतलब सर्वाइव कर पाता है और वो डैड ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म्ड, क्या स्पेलिंग लिखी मैंने, ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म, मीन्स लार्वा इज फॉर्म तो कैसी डेवलपमेंट हो गई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इज इट क्लियर। सो जो स्पर्म, जो अपर पार्ट होता है ना निरिस का, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, द पार्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, पार्ट डोंट प्रोड्यूस स्पर्म, जो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता उस पार्ट को बोलते हैं एटॉक, एब्सेंट, एमिस एब्सेंट, और जो पार्ट स्पर्म प्रोड्यूस करता है उस पार्ट को बोलते हैं एपीटॉक। एपीटॉक इज स्पर्म प्रोड्यूसिंग पार्ट, इट इज स्पर्म प्रोड्यूसिंग पार्ट। क्लियर। सो निरिस इज ओवर। एग्जाम्पल वैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, फिर भी मैं लिख देती हूँ। एनेलिडा फाइलम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। फर्स्ट वन इज हिरुडीनिया, हिरुडीनिया इट इज लीच। सेकेंड इज निरिस। थर्ड वन इज फेरेटिमा पोस्थुमा। थर्ड is Ferretima, which is earthworm. So these are examples of phylum Annelida. So phylum Annelida is completed. I hope today's content is very clear to you. In next class we'll discuss about the phylum Arthropoda. Until then you prepare notes with the help of my video as well as NCERT book. Still if you have any doubt regarding phylum Annelida, then you can leave it in comment section. Then I'll try my best to clear your doubts. एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड ऐसे ही अगर आप मेरे साथ बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लाइफ टाइम तक याद रखना चाहते हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू एवरीबडी।